This Sankirtan movement is a prime benediction for humanity at large because it spreads the rays of the benediction moon. It is the life of all transcendental knowledge and it increases the ocean of transcendental bliss. And it enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious. Nam Nam Kari Bauda Nija Sarva Shakti Tatra Pita Nyamita Smaranena Kala Eta Darshi Tava Kripa Bhagavan Bhavapi Durdevam Vidarsham Ihajani Nanulaga. O Almighty Lord, your holy name alone can render all benediction to living beings. Thus you have hundreds and millions of names like Krishna and Govinda. In these transcendental names, you invested all your transcendental energies. There are not even hard and fast rules for chanting this holy name. O Almighty Lord, out of kindness, you enable us to easily approach you by your holy names. But I am so unfortunate that I have no attraction for them. Tranadapi shunichena tarorapi sahaisnuna amani namandena kirtaniye sadahari. One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw in the street. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige, and should be ready to offer all respects to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. Na dhanam, na janam, na sundarim, kavitamba jagadisha kame, mama janmani janmani ishvare. Bhavatad bhakti ahaitukit. O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful women, nor do I want any number of followers, but I want only your causeless devotion service, birth after birth. Ainanda tanuja kinkaram patitam am vishame bhavam buddhao. Kripya tava pada pankaja sita dhuni saddusham vichintaya. O Sanama Rajananda Krishna, I am your eternal servitor, yet somehow or other I have fallen into the ocean of birth and death. Please, therefore pick me up from this ocean of death and place me as one of the atoms at your lotus feet. Nainam galada shrudhareya badanam gadgadadarudhaya gira pulake chintam vapukada tava namangrane bhavishya. O Almighty Lord, when will be my eyes be decorated with tears of love, flowing constantly when I chant your holy name? When will be my voice be choked up? When will the hairs on my body stand on end at the recitation of your name? Yugayatam nimishena chakshusha prabhashyata shunyayatam jagat sarvam Govinda Birahen. O Govinda, feeling your separation, I am considering a moment to like 12 years or more. Tears are flowing from my eyes like torrents of rain. And I am feeling all vacant in the world in your arms. Ashilesha vapadaratam pinastomam adarshnan maram hatam krito yatha tatava vidadatu lampado mat prananatastu saivanapa. I know no one but Krishna is my Lord, and he shall remain, so even if he handles me roughly by his embrace, or makes me broken-hearted
by not being present before me. He is completely free to do anything and everything. For he is always my worshipable Lord unconditionally. Shri Shri Shikshastra ki jai. Shri Shri Gaur Nitai Panchatattva ki jai. गौर निताय पंचतत्व के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। बोलो वृंदावन धाम की जय। अभी आगे 10 ऑफेंसेस, 10 नाम अपराध। अगर कोई बहुत जन्मों तक कृष्ण नाम का जप कीर्तन करता रहे और अपने आप को 10 नाम अपराधों से ना बचाए तो उसे कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी, जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। 10 नाम अपराध इस प्रकार है। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना है जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पण किया हुआ है। दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर अथवा स्वतंत्र समझना है। तीसरा नाम अपराध गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना। चौथा नाम अपराध श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा नाम अपराध हरि नाम को काल्पनिक समझना। छठा नाम अपराध हरि नाम पर अर्थवाद का रोपण करना। सातवां नाम अपराध नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध वेद शास्त्र में बताए हुए कर्मकांड के बराबर हरि नाम को समझना। नौवां नाम अपराध अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। 10वां नाम अपराध इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना। जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें अपने आप को इन 10 नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य है। याद रखो सारे, जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। ये मनुष्य शरीर मिला है कृष्ण से प्रेम करने के लिए। देखो ये कलयुग है, कलयुग में हम लोगों में बड़े भेदभाव हैं, पर प्रभुपाद जी ने सब समझाया, कोई भेदभाव नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी लोग भक्ति कर सकते हैं। भक्ति सभी का अधिकार है। तो याद रखना में मेरे जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। अगर कृष्ण से मेरा प्रेम हो गया तो कृष्ण मिल गए। अब मेरा प्रेम क्या है? संसार से है, परिवार से है, पत्नी से है, पति से है, बच्चों से है, पैसे से है, घर से है, बाहर से है। ये प्रेम जो है शरीर के साथ समाप्त हो जाएंगे। जब शरीर छूटा कोई किसी का नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। सब नाते रिश्ते खत्म हो जाते हैं। होते नहीं होते? बोलते नहीं सब लोग? मॉरिशस में नहीं होते तो बोलते क्यों नहीं? फिर नाते रिश्ते खत्म होते हैं नहीं? हाँ, याद रखो। शबरी तुम क्यों नहीं बोल रही? आवाज नहीं आती तुम्हारी? ये सब नाते रिश्ते झूठे हैं, चाहे पति है, पत्नी है, कोई भी है। हमारा तो असली संबंध भगवान से है। श्री कृष्ण हमारे पिता हैं। क्या है? क्या है? सब लोग बोलते क्यों नहीं? कृष्ण हमारे पिता। हाँ, हम सब कृष्ण के बच्चे हैं। कोई गोरा बना कर्मों से, कोई काला बना कोई कर्मों से। जैसे कर्म की आत्मा सब में एक समान है। जैसी आत्मा मेरे शरीर में है ना, ऐसी आत्मा एक चींटी के शरीर में भी वैसी ही आत्मा है। चींटी सब समझते हो नहीं? सब में एक बराबर आत्मा है, लेकिन कर्मों से हम अलग अलग बन गए। कोई चींटी बन गया, कोई घोड़ा बन गया, कोई हाथी बन गया, कोई कुछ बन गया। लेकिन हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं।
और मनुष्य शरीर में आकर हमारा काम है, जो हमारा भगवान से संबंध टूट गया है। संबंध कैसे टूट गया? हमने भगवान की भक्ति छोड़ दी, हमने भगवान से अलग रह के सुख भोगना चाहा। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। जीव कृष्ण को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है तो क्या होगा? पाशे ते माया टारे झौपड़ी अधरे। जब भगवान को भूल कर हमने सुखों को भोगना चाहा तो माया की चपेट में हम आ गए, माया के निरीक्षण में आ गए। अभी हम सब माया के निरीक्षण में हैं, लेकिन माया का निरीक्षण दुखदाई है। इससे हमें फिर से जन्म मरने के चक्कर में जाना पड़ेगा, पता नहीं कैसा शरीर मिलेगा। हमने श्री कृष्ण की शरण में आना है और उनका शुद्ध भक्त बनना है। बस सदा भगवान का सिमरन, जैसे कहा है ना, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन कृष्ण चरण सुखदाई। सारे बोलो, मॉरिशस के बोलते नहीं। हे मेरे मन, कृष्ण का भजन ही सुखदाई है। क्या भगवान के चरणों का कमाल? जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन चरण शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम प्रयोग है। त्रिभुवन तारन आई। त्रिभुवन तार भज मन राम चरण सुखदाई। हे मेरे मन, तो भगवान राम भगवान कृष्ण दोनों एक ही हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान गौर, भगवान नरसिंह, सब एक हैं। ये सब विष्णु तत्व हैं, भगवान के कृष्ण के सारे स्वरूप हैं। ये मेरे मन, तो भगवान के चरणों का भजन कर, उसी में तेरे को सुख मिलेगा। इस संसार में कोई सुख नहीं है, लेकिन हम लोग मूर्ख लोग जो हैं इस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। यहाँ नाम का सुख और परिणाम में दुख। क्या है? लड़का सोचता है मेरी इस लड़की से शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा। शादी जब हो गई, थोड़े से मरे फिर लड़ना शुरू कर देते हैं आपस में, डिवोर्स कर देते हैं, छोड़ देता है। कभी लड़की छोड़ देती है, कभी लड़का छोड़ देता है। ये आम हो गया। अभी संसार में कोई सुख नहीं है। पति पत्नी को, दोनों को रह करके जीवन का केंद्र सुख भोग को नहीं बनाना, जीवन का केंद्र कृष्ण को बनाना है। पति पत्नी बच्चे सब कृष्ण को जीवन का केंद्र बनाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। ये प्रभुपाद कृपा से हमको मिला है। प्रभुपाद ने पूरी दुनिया को ये दिया है। तो मॉरिशस को प्रभुपाद ने कहा था कि मॉरिशस कैन बी द फर्स्ट कृष्णा कॉन्शियस कंट्री इन द होल वर्ल्ड। कहा था, नहीं कहा था? इसलिए सबको मेहनत करके, जितने भी मॉरिशन से थोड़े से लोग रहते हैं, मॉरिशन की सारी आबादी कितनी है? 10 लाख कितनी है? 13 लाख। 13 लाख आबादी। तो इंडिया में एक एक शहर की आबादी 50-50 लाख है, 1-1 करोड़ है। दिल्ली की कितनी आबादी है? 2.5 करोड़। दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ है। बम्बई की कितनी आबादी है? दिल्ली के 2.5 और बम्बई के 2। उसकी वही है। यूपी की 22 करोड़। यूपी की 22 करोड़। तो छोटी जगह है। प्रभुपाद ने कहा है हम सबको प्रयास करना चाहिए कि प्रचार करने का,
लोग कृष्ण भक्त बने। ये हाल इतना बड़ा बनाया है, ये हाल मंगल आरती के लिए भर जाना चाहिए पूरा। सारे जितने लोग हैं, पांडु सैक के जितने लोग हैं, सब मंगल आरती हैं। प्रचार करो। अभी देखो बाल जीवन कितनी दूर से आया है। बाल जीवन इतनी दूर से कैसे आ गया तुम? गाड़ी से आया। मैं ऐसे सोच ही रहा था, मैंने कहा बल जीवन जो है वो तो देखा तो बल जीवन प्रकट हो गया। तुम्हारे मिलने से पहले मेरे ध्यान में आया था, तो तुम प्रकट हो गए। कैसी लीलाएं करते हो तुम बाल जीवन, हैं? तो ऐसे सबको, जैसे इतनी दूर से बाल जीवन आया है, पांडु साय के लोगों को, उनको भी प्रेरणा दो, मंगल आरती में आओ। दिन की शुरुआत मंगल आरती से करो तो दिन अच्छा होगा। प्रभुपाद कहते हैं अगर दिन की शुरुआत अच्छी तरह से नहीं हुई तो दिन भी अच्छा नहीं होगा। तो मंगल आरती करनी है। और आज बहुत शुभ दिन है, आज गीता जयंती है। क्या है? आज 1 दिसंबर सोमवार, और आज मोक्षदा काशी का व्रत है। आज मोक्षदा काशी में मोक्ष देने वाली, अब रहने दो उनको भाई, वो रहने दो, मैं देख रहा हूँ अभी वो पढ़ रहा था मैं। आज मोक्षदा एकादशी भी है। वैसे सारी एकादशियाँ महान हैं, आज की एकादशी का नाम ही मोक्षदा है, मोक्ष देने वाली है। हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। क्या कर रहा है तुम? उसको लाना जो पहले था। तो मोक्षदा एकादशी, इन मोक्ष देने वाली। आज हम आपको एकादशी की कथा भी सुनाएंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। और आज मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी है। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का गायन किया था भारत में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में। कुरुक्षेत्र आज भी है भारत में, जहाँ भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। गीता क्यों सुनाई भगवान ने? क्योंकि अर्जुन कहे मैं युद्ध नहीं करूँगा। असल में अर्जुन भगवान के सखा हैं। वो क्यों ऐसा कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूँगा? ये भी भगवान की इच्छा है। अगर अर्जुन मना करते, नहीं करते, तो फिर गीता का गायन नहीं होना था ना। अर्जुन को समझाने के लिए भगवान ने ये गीता का गायन किया। और आज का ये दिन है। बोलो भगवद गीता की। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संभवतायुध सभा मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, ये धृतराष्ट्र कह रहा है संजय को, मेरे पुत्र पांडु पुत्रों ने। अब देखो प्रभुपाद कहते थे, जो ये था क्या नाम उसका, कौरवों का बाप, क्या नाम? धृतराष्ट्र। प्रभुपाद कहते थे वो जन्म से भी अंधा था, उसकी आंखें नहीं थी, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। वो अपना पुत्र दुर्योधन उसको राजा बनाना चाहता था, जबकि राजा के योग्य युधिष्ठिर महाराज थे, वो बड़े भक्त थे भगवान के। तो समझाया भगवान ने। भगवान दुर्योधन के पास गए, देखो दुर्योधन, ये राज्य तो पांडवों का है, तुम करना चाहते हो, पांडु लड़ना नहीं चाहते। लड़ने से खून खराबा होगा, बहुत सारे योद्धा मर जाएंगे, उनकी स्त्रियाँ विधवा हो जाएंगी, वर्ण शंकर पैदा होंगे, तो अच्छा नहीं है। पिंड नहीं देंगे अपने पुत्रों को। लुप्त पिंडो दक क्रिया, पिंड क्रिया लुप्त हो जाएगी। तुम ऐसा करो, तुम संसार का राज्य करो, पांडवों को 5 गांव दे दो, ताकि 5 भाई एक एक गांव पर राज करके अपनी जीविका निर्वाह करेंगे। तो जब ये कहा भगवान ने, दुर्योधन कहता है 5 गांव मैं सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। इतना बदमाश, सर्वनाश उसने करा दिया, लेकिन सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दी।
सारा नाश हो गया, कौरव कुल सब नाश हो गया। तो आज के दिन की गीता का गायन हुआ था। तो गीता जो है प्रभुपाद जी ने बड़े अच्छे ढंग से समझाई। गीता का प्रभुपाद जी ने बड़ी सरल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया और सारी दुनिया में प्रभुपाद जी की गीता पढ़ी जा रही है। भगवत गीता एज इट इज। लोगों को बीमारी क्या है, लोग भगवान के शब्दों को बदलते हैं। मेरे विचार में ऐसा है, मेरे विचार में ऐसा है। प्रभुपाद कहते हैं तेरे विचारों की कीमत क्या है, तेरे में तो 4 दोष हैं। जो भगवान ने कहा यथारूप जब प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया, ये कब किया कि एक स्त्री ने अमेरिका में प्रभुपाद जी को कहा कि मैं कौन सी गीता पढ़ूं, मुझे रिकमेंड करो आप। प्रभुपाद कहते हैं कौन सी गीता रिकमेंड कर रहा है, सभी में गलत उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, अपना विचार दिया। तो प्रभुपाद ने गीता का अनुवाद किया एज इट इज। जब एज इट इज गीता आई प्रभुपाद कृपा से, दुनिया में लोग भक्त बन गए, कृष्ण की शरण में आ गए। तो यथारूप भगवान के शब्दों को बदलने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो भगवत गीता यथारूप सबको पढ़नी चाहिए। जो आज के दिन भगवान ने गीता में गायन किया था, अपना कुरुक्षेत्र के युद्ध में गीता मतलब गाया उसको। तो बोलो गीता माता की, बोलो भगवत गीता की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तो आज मोक्षदायक काची है। तो मोक्षदायक काची की जो कथा है वो हम आपको सुनाते हैं। ब्रह्मांड पुराण में मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदायक काची का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं। कृष्ण भगवान आज के काची के बारे में इसकी महत्ता, इसका महात्म्य युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे देवेश्वर, हे देव देवेश्वर, हे सब देवों के ईश्वर, सबसे बड़े श्री कृष्ण भगवान, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली काची का क्या नाम है, उसे किस प्रकार करना चाहिए, किस देवता को पूजना चाहिए, कृपया इस विषय पर विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी मोक्षदा कहलाती है। आज की का नाम है मोक्षदा। इसकी महिमा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये खाली सुनने से इसका इतना महात्म है। वाजपेयी यज्ञ जो है बहुत बड़ा यज्ञ है, उसके महात्म प्राप्त होता है। यह एकादशी पाप हरण करती है। ये आज की एकादशी हमारे, देखो हम क्यों ठीक तरह सोच नहीं सकते, पाप हमारे सरों पर हैं। आज की एकादशी पापों को हरण करती है। हे राजन, इस दिन तुलसी मंजरी और धूप दीप के साथ भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए। दामोदर भगवान को पूजना चाहिए इस एकादशी आज के दिन। बड़े बड़े पातकों को नष्ट करने वाली मोक्षदा एकादशी की रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य कीर्तन तथा कथा करके जागरण करना चाहिए। भगवान कहते हैं मेरी प्रसन्नता के लिए रात को जागरण करना चाहिए। आप लोग करते हो कब जागरण? नहीं, कभी नहीं करते। आज की एकादशी के दिन करना चाहिए। भगवान कहते हैं मेरी प्रसन्नता के लिए। जिनके पूर्वज नरक में हैं उनके द्वारा इस एकादशी के पुण्य को पूर्वजों को दान करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राय हमारे नरक पूर्वज नरक में ही गए होंगे, लेकिन आज की एकादशी के सब ये करके पुण्य अगर उनको दान करें तो उनको भी मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। प्राचीन काल में वैष्णव निवासित रमणीय चंपक नगर में वैखानस महाराज राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन करते थे। महाराजा वैखानस
बेखानस, प्रजा का पालन संतान की तरह करते थे। एक रात को उन्होंने स्वप्न में देखा कि उनके पितर नीच नरक योनि में हैं। स्वप्न में देखा कि उनके जो पितर हैं नरक योनि में चले गए हैं, नीच नरक योनि। अपने पितरों की इस अवस्था से आश्चर्यचकित होकर अगले प्रातः काल में ब्राह्मणों को बुलाकर उस स्वप्न के बारे में कहा। ब्राह्मण बड़े विद्वान अच्छे ब्राह्मण होते थे, कल ही ब्राह्मण कोई रहा ही नहीं था, बेकार हो गया। स्वप्न बताया उन्होंने ब्राह्मण को। महाराज ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में देखा है। बार बार रुदन क्रंदन करते हुए भी मुझे कह रहे थे, तुम हमारे तनुज हो, हमारे छोटे हो, तुम ही हमें इस स्थिति से निकाल सकते हो। परिवार का जो है अपने छोटों को कहते हैं, तुम ही हमें नरक से निकाल सकते हो। हे दुज श्रेष्ठ, हे दुजबर, मैं उनकी इस अवस्था से अत्यंत विचलित हूं। तो महाराज जो है अपने पूर्वजों की ऐसी अवस्था देखकर परेशान है। क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता। हे दुष्श्रेष्ठ, कौन सा व्रत, तप या योग करने से मेरे पूर्वजों का नरक से उद्धार होगा? कृपया मुझसे कहिए। मेरे जैसा बलवान और साहसी पुत्र होते हुए भी मेरे माता पिता नरक में हों तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, निकट ही पर्वत मुनि का आश्रम है, उन्हें भूत भविष्य ज्ञात है। हे नृपश्रेष्ठ, आप उनके पास जाइए, पर्वत मुनि के पास जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर तत्काल राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गए और मुनि को दंडवत प्रणाम करके उनके चरण स्पर्श किए। मुनि ने भी राजा का कुशल क्षेम पूछा। महाराज कहने लगे, स्वामिन, आपकी कृपा से राज्य में सब कुशल है, किंतु मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे पूर्वज नरक में हैं। कौन से पुण्य से उनको मुक्ति मिलेगी, कृपया आप कहिए। राजा के वचन सुनकर मुनि कुछ काल ध्यानावस्थ हुए, ध्यान लगाने लगे मुनि जो हैं, और राजा से कहा, महाराज, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष को मोक्षदा एकादशी आती है। आज के दिन उस व्रत का आप सभी पालन करके उसका पुण्य पूर्वजों को दान कीजिए। उस पुण्य के प्रभाव से उनकी नरक से मुक्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मुनि के वचन सुनते ही राजा ने घर लौटकर एकादशी व्रत को धारण करके उसका पुण्य अपने पितरों को दान किया। उस पुण्य के दान करते ही आकाश से पुष्प वृष्टि हुई, फूल बरसने लगे आकाश से। बेखानस महाराज के पिता पूर्वजों नरक से बाहर निकल के आकाश में आए और राजा से को कहा, पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। इस आशीर्वाद को देकर वे सब स्वर्ग को गए। इस प्रकार जो कोई चिंतामणि समान इस एकादशी का व्रत करेगा उसे मृत्यु के बाद मोक्ष मिलेगा। इसका व्रत करने से मोक्ष मिलता है, भगवत प्राप्ति होती है, धाम में जाता है। जो इस महात्म को सुनेगा, पढ़ेगा, उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होगी। बोलो मोक्षदा काची व्रत महात्म की, बोलो मोक्षदा काची की जय। हरे कृष्ण। अभी और क्या बोलना है? हरे प्रभुपाद कौन सी?
हैं? हाँ हरि बोल, वो अभी आती है। अभी हम पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी है, प्रभुपाद शिक्षा अमृत। आज 1 दिसंबर है। प्रभुपाद ने शिक्षा नयनाभिराम को पत्र में, नयनाभिराम नाम का एक हमारा गुरु भाई, उसको पत्र में लिखी थी 1 दिसंबर को ये शिक्षा प्रभुपाद जी ने 1971 को। क्योंकि हम गाय का दूध पीते हैं, इसलिए हमें गाय को अपनी माँ के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यह शिष्टाचार है। देखो, गाय का हम दूध पीते हैं, प्रभुपाद कहते हैं गाय को हमें अपनी माँ के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। यहाँ मॉरिशस में गाय को मारा जाता है, नहीं मारा जाता है, बहुत पाप है, अच्छा नहीं। तुम लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए, गाय को मारना बंद करो। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो गाय माता की। अभी और कुछ सुनना है, यहीं समाप्ति करें, जाना सब लोगों को है ना। धीरे धीरे चले जाएंगे सब नाथन के रात, पीछे रहेंगे हम जगन्नाथ। सब चले जाएंगे, पीछे कोई भी नहीं। तो ठीक है, यही समाप्त करते हैं। आप सबका धन्यवाद। सब बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। तुम्हारी पत्नी आई है बाल जीवन? अच्छा अच्छा, तुम बोली नहीं ना कुछ भी। तो सबका स्वागत, बाल जीवन और उसकी पत्नी का भी स्वागत। ये बड़े दूर से आए। कहाँ से आए आप लोग? मोनाकेल। और ये कौन सी है? पौंडसाक। मोनाकेल से पौंडसाक कितनी देर की, कितनी टाइम का ड्राइव है? 30 मिनट देखो ड्राइव करके दिया है। इनका भी धन्यवाद और आप सबका धन्यवाद। जो चले गए उनका भी धन्यवाद, जो बैठे हैं उनका भी धन्यवाद। हरे कृष्ण।